concepts, ideas, and also throwing some questions to you so that you can prepare yourselves with sincerity and zeal and enthusiasm and unwavering commitment. सबसे पहले AI is a normal technology. So here normal technology means when it is going to make a difference to societal, political, economical, cultural, and other aspects of life. Artificial intelligence is definitely going to transform society in a revolutionary way, like the way computers have done, like the way industrialization had done. So the big developers, labs, and companies have been working on it, and India is also having its own mission for that. So the question arises that societal impacts would be such whether it will be bringing machines to the fore. No, it is not sure. There will be so many kind of jobs, and the most control may remain with the human beings if their skills and if their commitment is there. Secondly, when we say that AI is different from the past technologies, no, it is not like that. Every technology had made a difference, but then AI will also be making a difference. It is our learnings from our past experiences, and also in so many areas where we can make a difference to it, especially education, health, environment, pharmaceuticals, infrastructure, and so forth. That is why it is not just the goal of the big fintech companies and also other kind of big giants like Meta which will be making a difference, but it is all about how you are going to think its impact. So for much of the last decade, generative AI rapidly is improved because companies trained them using bigger and bigger data sets from the internet. Now AI has learned more or less everything that it can learn from the internet. Now it is going to learn by interacting with people, doing experiments in the real world, by deployed in the actual companies and organizations. India do not want to grow AI by only carrying on, for example, driverless cars. That is not something exactly we are looking for. We already have metro. We have already automated mode metro. We are having such kind of systems. But अगर हम future में देखें तो human labor, when we say it become redundant, no, it is not going to become redundant. It is only going to change. Some jobs will be quickly becoming cheaper and they will lose value. Human jobs will be, they will be moving to automation. लेकिन सारी jobs ऐसा नहीं होने वाली. So it is not enough to develop bigger or better AI models to realize their impact. It is very much important to understand that the societal impact of AI is realized when the technology is adopted over large number of productive sectors, labor intensive sectors, and उससे environment के साथ sustainability भी होनी चाहिए. So that is why governments are playing a very important role. They will try to minimize the risks. They will try to bring AI into the people's lives and so forth. That is why in India हमें ये सोचना है कि आप ये सोचिए कि इंडिया का नेक्स्ट 2 डिकेड्स में विकसित भारत में एआई का रोल क्या होगा और उसका फ्यूचर क्या होगा. अगर मैं दूसरी बात करूं, ऑस्ट्रेलिया चाइना थॉ द डिक्लाइनिंग डॉलर एंड द साउदी ऑयल गैम्बिट, तो ये कंटिन्यूइंग थीम है. चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, when we speak about that relationship, it has not been very smooth, and we can say that China is ready to move on because it wants to create new markets. It's very important for it. Dollar's declining value is linked with the US tariffs which Donald Trump had put on for beginning of its term. And Saudi oil gambit, when we say that Saudi Arabia is keeping the price low, and then a country like India, which is one of the major and most important importers, it is actually playing a very, very important role. So Saudi Arabia and OPEC plus members, they play a very important role, and their economy is completely dependent upon the oil economy. Ozempic is a wonder drug that can also reverse liver disease. इसमें एक ही कीवर्ड जो आपको याद होना चाहिए, MASH, that is metabolic dysfunction associated steatohepatitis. That is the keyword you should remember. So this is the only linkage which we say. Triple test to determine OBC quota in Jharkhand. Jharkhand was asked by the Supreme Court to do so because the triple test was outlined by the Supreme Court in Vikas Kishan Rao Gavli versus State of Maharashtra case. This you must remember. And it entails एक डेडिकेटेड कमीशन आपको सेटअप करना है, रेगुलर इंपेरिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इंप्लीकेशन टू द बैकवर्डनेस ऑफ लोकल बॉडीज. बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल बॉडीज का यहाँ पे लेना. और तीसरा, आप proportion of reservation required in local bodies in the light of recommendation of the commission, और आप इंश्योर have been at the level of what I should say higher in CM office, then you would have been easily able to understand, and your experience would have helped you to just go for it. Now, who gets voter ID card? So that is very important. Article 326 आपको पता होना चाहिए. Every person who is a citizen of India who is not less than 18 years of age and who is not otherwise disqualified on certain grounds shall be entitled to register as a voter.
And under Article 16, Section 16 of the RPA Act 1960, the disqualification follows if a person is not a citizen of India or is of unsound mind and stands to declare by competent court or is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with the elections. तो ये कुछ सॉलिड एकदम फॉर्मेट है, ये आपको डिटरमिनेट सिटीजनशिप की बात है, उसको आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के एंगल से कि इंडिया का जो इलेक्टोरल रोल है उस पर नाम होना चाहिए। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईआरओ वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि कोई भी इन एलिजिबल पर्सन इलेक्टोरल रोल में ना आ पाए। वो इंक्वायर करेंगे क्लेम्स में और ऑब्जेक्शन अगर वो देते हैं सेटिस्फेक्शन के बाद तो आपका नाम नहीं आएगा। So there is a provision for appeal against the decision of the ERO. The owners of the pool of citizenship shall initially lie on the applicant who applies for the inclusion of his name in the for the first time. In case of an objection, the onus of providing the proof lies on the objector. According to the manual, here the ERO would be justified in requiring the person concerned to show evidence that he is a citizen of India. Migrants हैं, married women हैं, उनके केस के अंदर भी ये चीजें लागू होती है। मैरिड वुमन के केस के अंदर ERO satisfies himself or herself जब वो देखता है कि अनमैरिड वुमन का कहाँ पर वोट था। That's how it happens. अब हम कैस्ट सेंसस की जब हम बात करते हैं, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टेगनेंट कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, और दूसरा हम बात करते हैं कि क्या वाकई क्रूशियल होगा, गवर्नमेंट उस सेंसस से करेगी क्या। सो पहले मैं योगेंद्र यादव सर जो बात करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली कि कैसे जो कास्ट सेंसस है एक न्यू फेस है पॉलिटिक्स में, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में। एंड द डिसीजन ऑन द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमें शक नहीं करना चाहिए, इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। कैसे होता है गुड और बैड वो बात की बात है। इसके लिए राहुल गांधी की भी पिच थी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यू नो इनफैक्ट कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग ऑफ द कैस्ट सेंसस एंड व्हाट वी कैन से दैट द डिस्प्यूट ओवर क्रेडिट विल आल्सो सून फेड अवे, क्योंकि पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल क्रेडिट गोज टू पीपल। पहले के जो लीडर्स थे, राजा आई एम सेइंग राम मनोहर लोहिया सर, उसके बाद कपूर ठाकुर, मधु लिमाय, शरद यादव, जिन्होंने कास्ट सेंसस को अपनी लाइफ का मिशन बनाया। इसमें आरजेडी जेडीयू गवर्नमेंट का भी रोल है। सो द पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले कि कास्ट का इन्यूमरेशन होगा और कवरेज पूरी होगी, वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के लिए नहीं होना चाहिए। ये ईच ऑफ दीज कास्ट में द जनरल कैटेगरी मस्ट आल्सो बी enumerated so the voter can uncover the full profile of the caste privilege. There must be no attempt to tie census to the NPR, that is National Population Register. मोस्ट सीरियस डिमांड क्या होनी चाहिए कि भाई एक कॉम्प्रेंसिव आपने कास्ट वाइज प्रोफाइल किया, आपने रिसोर्सेज कास्ट वाइज प्रोफाइल्स ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज की। सेंसस को सारा डेटा लिया सेंसस ने, और उसके बाद उसके हिसाब से आपने जैसे ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ लैंड है, जॉब है, प्रोफेशन है, और ये क्वेश्चन जो है आपने ठीक से पूछकर उसको कर दिया। सो अब होगा क्या, ओनरशिप एंड यू नो डायरेक्टरशिप ऑफ हाई वर्थ कंपनीज हैं, कमर्शियल इंटरप्राइजेज, ये भी लेके आना चाहिए। हाई गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये भी आप लेके आइए। ये सब लेके आने से ही आप एक पूरा प्रोफाइल बना पाएंगे। और एग्रीकल्चर सेंसस में भी, और यानी इकोनॉमिक सेंसस, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, पीरियोडिक लेबर सर्वे, तो ये जो क्वेश्चन मतलब ऑलरेडी यू नो पूछे जा चुके हैं। जैसे अब इनके अंदर आपने कास्ट नहीं पूछा था, जो ये बाकी सर्वेज मैंने नाम दिए, तो इनमें भी कास्ट का हिसाब किताब होना चाहिए। तो कास्ट डेटा शुड सेटल द डिबेट ऑन द रेशनल फॉर द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और वही बात है कि जो आपका कास्ट सेंसस जो है वो आपका 50% जो रिजर्वेशन है उसकी बात उसको ब्रीच नहीं होगा। वैसे तो सीलिंग हैज बीन पुट अप बाय द एपेक्स कोर्ट, एंड सेम कोर्ट ने जो है 50% के बाद उसको 60% भी किया। तो बात यही है, अभी इसको हमें देखना होगा कि पॉलिसीज, प्रोग्राम, सोशल जस्टिस हो कैसे पाए। इसी की चर्चा वंदिता मिश्रा जी भी करती हैं। डाइवर्सिटी, इक्वलिटी और इंक्लूजन की बात वो कर रही हैं। अमेरिका के डीईआई प्रोग्राम का जो है उन्होंने एग्जांपल दिया। इंडिया के अंदर जो है कास्ट सेंसस रिमार्केबल है, क्योंकि वो मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है, और बीजेपी गवर्नमेंट उसको ज्यादा लाइटली, मतलब उसको ज्यादा आई मीन से उसको ज्यादा सिंसियरली नहीं लेती थी पहले, ऐसा कहा जाता है। तो अब सोचना ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज हो गया कि करना पड़ेगा, ना सिर्फ मोदी बीजेपी की बात है, सबकी बात हो रही है। दूसरा, काउंटिंग ऑफ द कास्ट किसी तरीके से क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या उनकी मोबिलाइजेशन को कमजोर करेगा या डिवाइड करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। कास्ट है, उसके नीचे सब कास्ट है। सोशल साइंटिस्ट देश पांडे साहब ने कहा है कि यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट वी नीड टू मेजर प्रिसाइजली दोज थिंग्स दैट वी मीन टू अबॉलिश।
और एल्स वी रिस्क मिस्टेकिंग सेंसरशिप फॉर अबॉलिशन। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने कमेंट दिया। हमें जो है पूरे ध्यान से देखना होगा, हमें समझना होगा, और उसके बाद जो है हमें जो है ये देखना होगा कि भाई उससे हम पॉजिटिव बेनिफिट कैसे करें। जैसे आप मंडल कमीशन की बात करते हैं, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने जिसको किया था, ताऊ देवीलाल जी ने उसको करवाया था, और एल के आडवाणी साहब की यात्रा भी इतना मौका नहीं दे पाई थी। तो क्वेश्चन यही है कि गवर्नमेंट उस डेटा के साथ करेगी क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सोशल जस्टिस और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो पाएगा, लेकिन क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्या चल पाएगा, क्वेश्चन ये है। नए चैलेंजेस हैं, इनइक्वलिटी है, बहुत सारे सालों का डिफरेंस है, तो जस्ट सोशल जस्टिस जो है वो पिटफॉल को अवॉइड करेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के। तो ये बात है। तो इसीलिए पॉलिटिकली हम कह सकते हैं एक क्रूशियल स्पेस को ओपन करता है वो। और ये जो ओपन स्पेस है, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम आगे कैसे बढ़े। अगर हम बात करें आईआईटीज में, हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं क्वांटम फिजिक्स में, बट हम नहीं पूछते आर यू ओके। लेकिन हम ऐसा नहीं, हमारे वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो हमने हमेशा ही पूछा कि हाउ आर यू ओके, और उसके हिसाब से मजबूत किया है। तो सीधी बात यह है कि आप आईआईटी के जो वर्क कल्चर है उसको डिफेंस करना होगा, आपको सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना होगा। आपका ये बच्चे का ये सोचना कि भाई मैं बड़ा नहीं बना तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और कोचिंग के पोस्टर बॉय से उसको चौड़ा होके आना, यूपीएससी की सिर्फ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी यही है। उसमें बस फर्क इतना है कि बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होकर आता है, लेकिन वो फिर भी सक्सेस नहीं पा पाता है, क्योंकि सक्सेस का रेशियो थोड़ा नहीं है, आपका लेवल कम रह जाता है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड माइंड है, जिसके लिए सक्सेस को मिलना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो इसीलिए बात यही है। मैं ऐसा नहीं मानता कि प्रोफेसर नहीं पूछते हैं आर यू ओके, लेकिन पेरेंट्स का रोल भी है, टेक्नोलॉजी का रोल भी है, खुद की सोच भी है, और आपकी ईमानदारी भी है। और बहुत सारे तो खुद ही आर यू ओके में बिलीव नहीं करते, बिकॉज दे बिलीव डजंट मैटर, मुझे इतना बड़ा पैकेज चाहिए। तो कोड लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुश होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आगे बात करूं, द लॉक इन पीरियड ऑफ द शेयर्स वर 2.2 लाख करोड़ आर सेट टू बी एंड बाय जुलाई। ये स्विगी के केस में दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि लॉक इन पीरियड खत्म होगा, शेयर्स विल बी अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट, एंड इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। सो दिस शोकेसेस दैट कि जो मार्केट का डेवलपमेंट है वो, और दूसरा इंडियन मार्केट्स हैव बीन ऑन अ रोल विद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दे आर ऑन अ बाइंग स्प्री। तो कई फैक्टर्स इसमें हम कह सकते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस, इफ दे आर नॉट वेरी हाई देन डेफिनेटली इन्फ्लेशन उससे कम होता है, हमारे खर्चे कम होते हैं, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो चीजें आती हैं। तो दैट इज वाई द सेक्टर फेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, आपको नाम पता होने चाहिए, आपको उसका जो चेन है पूरी वो पता होनी चाहिए। इंडियन रुपी की अगर मैं बात करूं, सो इफ इट इज गेनिंग, इंडियन रुपी इज गेनिंग, सो डोमेस्टिक करेंसी अगर फेवरेबल हो रही है, तो देन अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलवेज कि अगर रुपी मजबूत होता है तो उसमें से जो उसके स्पिन ऑफ्स होते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स के लिए, उसके बाद साथ साथ में जो आपके ट्रेड पे इम्पेक्ट होता है, और जो इमेज वाली बात है, वो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। और रुपी का जो बढ़ना या रुपी का जंप होना क्रूड प्राइसेस से जैसे जुड़ा हुआ है। अगर क्रूड प्राइसेस के प्राइसेस बहुत बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली रुपी कमजोर होता चला जाएगा, लेकिन प्राइसेस गिरे हैं तो रुपी मजबूत हुआ है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। मिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो कैश इंसेंटिव्स का देना, हायर एमएसपी, बेटर प्रोक्यूरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस, पॉलिसी सपोर्ट इंसेंटिव्स, कार्बन क्रेडिट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको मिलेट के रिवोल्यूशन में हेल्प करेंगे, चाहे राजस्थान हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो। जो यहाँ पर फैक्ट्स दिए गए हैं वो आप प्लीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पैडी इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर वाटर इसका स्क्यूड रेशियो नहीं करना चाहते, तो हमें ये देखना होगा कि कैसे हम पैडी की तरफ मूव करें। तो उसी के मैंने एग्जांपल आपको बताए। एमएसपी फॉर मिलेट्स लाइक बाजरा एंड ज्वार। उसके बाद जो है आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, प्रोक्योरमेंट की बात करें। उसके बाद आप एमएसपी जो पॉलिसी सपोर्ट है मिलेट्स की, इनएडुकेट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। फिर उसके बाद आप जो है उसके लिए जो स्टार्टअप्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके साथ वो चाह सकते हैं कि कोई प्रोग्राम स्टार्ट कराएं, दे मस्ट पुश इट अप, 1 साल 2 साल में वो रिजल्ट देना शुरू करेगा। डिस्ट्रेस सेल से बचाना है। और मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। तो एज वी हैव डिस्कस, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, और उनके सीजन के हिसाब से बात हो।
स्मॉल लोन स्पेल बिग ट्रबल, बातें वही हैं। यदि आप द मनी इज नॉट बीन एबल टू गिव बैक, दिक्कत होती है उससे लेंडर्स को भी। lenders feel very very down and they have to resort to different ways. Tamil Nadu, like Odisha, they have come up with a law जिसके अंदर third parties cannot coerce or cannot force, लेकिन collateral damage भी हो सकता है। परसेप्शन हो गया एक तरीके से बायर्स के लिए, और वो पैसे भी देके राजी नहीं है। तो क्राइसिस बहुत डीप है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दे हैव बीन हिट हार्डेस्ट, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ भी बहुत दिक्कत हुई है। दैट इज व्हाई आरबीआई आल्सो कम अप विद द न्यू गाइडलाइंस। तो माउंटिंग ऑफ बैड लोन्स आया जब, और ऊपर से उसको लेने के लिए जब प्रेशर आता है, और जॉइंट लाइबिलिटी जो ग्रुप मॉडल है जिसमें वुमेन ही मैक्सिमम बोरोवर्स हैं, वो सोशल लिटरल है एक तरीके से। सो यही जब टूटता जाएगा, और जो जेएलजी मॉडल है, दैट इज जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप वाला जो मॉडल है, अगर यही अगर पूरा साइकिल नहीं पूरा कर पाएगा और ये टर्न अराउंड होने में बहुत टाइम लेगा, तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते द वर्स्ट इज ओवर। 22% ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स their loan have turned bad in financial year 25। the collapse of the joint liability group, जैसा मैंने बोला, उससे भी दिक्कत हुई है। सो इस पे आपको क्वेश्चन देखना है, मिलेट्स पे आपको एक क्वेश्चन देखना है, ये दोनों आप देख सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑर्डर्स मॉक ड्रिल टुमारो, दैट इज द पार्ट ऑफ द रेगुलर एक्सरसाइज। ये मैंने जैसे आपसे पहले भी चर्चा की है, तो इसमें हमारी कुछ खास बात नहीं है। Chenabs run dry near Pak as sluice gates of Salal and Baglihar dams are closed। तो आप बागलिहार, अखनूर, सलाल, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे आपको सारे नाम पता हो। Then FDs to PPF, houses to stocks, Supreme Court makes its judges assets public। तो हमने देखा कैसे कंजर्वेटिव और सेफ उसमें उनका स्टेक है। तो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। एंड जैसा कि जस्टिस ऑनरेबल सीजीआई खन्ना का साहब का एक 2 बेडरूम डीडीए फ्लैट है साउथ दिल्ली में, बिसाइड्स अ 4 बेडरूम फ्लैट इन कॉमनवेल्थ गेम विलेज। ही आल्सो 50% शेयर in a 4 bedroom flat in Gurugram with his daughter, holding the remaining 44%। and and sharing the assets allowed dating from before partition in हिमाचल प्रदेश। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही जस्टिस गवई साहब की भी बात की गई है। तो दिस इज क्वाइट ओके। वन डे वन जीनोम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनविजिबल बायोडाइवर्सिटी को स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर इनकलकेट करने के लिए। एंड इट मस्ट बी मेड पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम्स। जो ब्रिक का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, NIBMG, वेस्ट बंगाल बेस्ड इंस्टीट्यूट अंडर डीबीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप नोट कीजिए। एंड 13 BRIC ब्रिक इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस मतलब इंस्टीट्यूशन है, एंड 2 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB न्यू दिल्ली, एंड रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद। तो क्वेश्चन यही है कि जीन असेंबलेज हो गई, एनोटेशन हो गया, और जो रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए, तो इस ऐसे ही करके आप इंगेजिंग बना सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, एथिक्स में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। आरबीआई इज हैविंग अराउंड 880 टन ऑफ गोल्ड, लेकिन जब हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जिसके पास 3000 3,500 टन गोल्ड है, इटली की जिसके पास 2,500 टन गोल्ड है, फ्रांस के पास भी 2,500 टन गोल्ड है, चाइना के पास भी 2,290 टन गोल्ड है। और आप कह सकते हो कि अगर आप बाकी कंट्रीज की बात करते हो, तो कई कंट्रीज के पास कम भी है, लेकिन द फैक्ट दैट इंडिया के पास मतलब अब इतना भी नहीं है। लेकिन इंडिया ने अपना जो है गोल्ड को अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही मंगाया है, और परचेज अपनी बढ़ा रहा है। एनुअल परचेज 73 टन की, मोर देन 4 टाइम्स द लेवल ऑफ इट्स गोल्ड बैंक इन 2023। सो और दूसरा बैंक बैंक ऑफ नाइजीरिया है जिन्होंने अपना गोल्ड को लिया। तो क्वेश्चन वही है कि आरबीआई उसको सेफ मानता है, हम उसे सेफ मानते हैं, और ये एक प्रूडेंट डिसीजन है, ये आप कह सकते हैं। एडीबी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी चर्चा की थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज पार्ट ऑफ मेनी होलिस्टिक प्रोग्राम्स, schemes and models and infrastructure। And we believe in the sustainability, we believe in climate resilient measures, we believe in the use of insolvency and bankruptcy code, GST implementation, PLI, great ways of doing business। ये कीवर्ड्स मैं यहाँ से देख के बोल सकता हूँ। अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे सेंट्रल बर्न में म्यूजियम्स का रोल है। म्यूजियम्स आपकी मेमोरी को अलाइव रखते हैं, म्यूजियम्स आपको इंस्पायर करते हैं, म्यूजियम्स आपको फ्यूचर के गुड डीड्स के लिए इंस्पायर करते हैं, बैड डीड्स को आप छोड़ सकते हैं। चाइना बिगेन डी रिस्किंग वेल बिफोर ट्रम्प स्टेट फ्यूरी। तो ये चाइना की ग्रेटनेस है कि चाइना नोज वेरी वेल कि उसको अपने पत्ते कहाँ रखने हैं। दैट इज व्हाई इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्री, और चाइना विजुअलाइजेस इट्स वर्ल्ड विदाउट यूएस।
सो आप देखिए चाइनीज इंपोर्ट ऑफ यूएस सोयाबीन हैव डिक्लाइन फ्रॉम अबाउट 40% to 18% नाउ. And even though 130 Boeing aircraft remained to be delivered to Chinese airlines and lessors, China stopped ordering new Boeing aircraft several years ago. Chinese import of US crude oil, hydrocarbons, and industrial product was about 20 billion till recently. It has completely substituted with other supplies in the past couple of. China imported about 11 billion of nuclear reactors, machines, and boilers. China has made significant progress in becoming self-sufficient in nuclear technology and will actually reduce it. तो ये एग्जांपल अपने आप में बहुत हैं. Medical products, aviation parts, lithography, machines, helicopter, quartz, ethane are said to be on the Chinese exempt list. Although this carved out of list of import is expected to be dynamically changed. तो most impressive changes क्या है? Fundamental and applied sciences and technology जिसमें इंडिया को बहुत वर्क करना. US government is openly quarreling with major universities, has withheld funding to National Institute of Health. टैलेंट एंड फंडिंग भी कम कर दिया है, नेशनल साइंस फाउंडेशन के लिए भी कम कर दिया है, जबकि चाइना ने फास्ट ट्रैक किया है और ज्यादा बढ़ा दिया. दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड सर्किट साइंस एंड इंजीनियरिंग, लो एटीट्यूड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, कार्बन न्यूट्रलिटी साइंस. ये की वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें हेल्प करेंगे. और आप साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो कि एग्जांपल दिया है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने कि ऑल टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स आर फ्रॉम चाइना, ये बहुत बड़ी बात है. तो हमें हमें एग्जांपल लेने हैं. जैसे यूएस का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, इट इज रेस विद चाइना छांगे इनिशिएटिव. फर्स्ट परमानेंट स्टेशन मून में कौन लेके आएगा, चाइना कि यूएस? लड़ाई इस बात की हो रही है. चाइना के पास ये नहीं है कि गैप नहीं है, गैप बहुत सारा है, लेकिन फिर भी अगर कोई नजदीक है तो वो है चाइना. तो दैट इज हाउ व्हाट आर द लर्निंग लेसन्स फॉर अस. यहाँ से आप वो कीवर्ड्स ले सकते हो और हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 के आंसर में कर सकते हैं. आर्टिकल 142 को इन्वोक किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो तमिलनाडु के जो केस की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुडिशियल पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास वो न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है. तमिलनाडु लेजिस्लेटिव कंट्रोवर्सी जो है वो जब स्टेट गवर्नर फेल हो गए अपनी ड्यूटी को एक्ट करने में, तब सामने है. कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी पहले ऐसी कुछ बातें की हैं, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने मैटर को ओवरऑल लीगल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी लिया. इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट मैम को उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है. प्रेसिडेंट हैव बीन ओनली द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया है. तो इसलिए दैट इज व्हाई वी हैव टू सी कि जुडिशियल इंटरवेंशंस दे आर आइडली टू नज पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस बैक इनटू मोशन. उन्होंने किसी की पावर्स को असर नहीं किया. परमिट इजियर एक्सेस टू ओवर द काउंटर मेडिसिन, बात ठीक है आपका. पॉइंट यहाँ पर 3 है. पहली बात तो इंडिया में चलिए चलता है, चाचा जी की दुकान से लेके आते हैं, और ऑनलाइन वाले भी जो मिस हैंडलिंग है उन दोनों को हमने ढंग से रेगुलेट नहीं किया है. ड्रग जो इंस्पेक्टर्स हैं या ड्रग अथॉरिटीज हैं और ड्रग कंट्रोल बॉडी है, दैट हैज टू वर्क मोर स्मार्टली. ऊपर से अवेयरनेस हमें बहुत करनी पड़ेगी. ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड वो ट्वीक करना चाहती है इन रेगुलेशंस टू फर्स्ट डिफाइन ओटीसी ड्रग्स क्लियरली एंड देन लाइसेंस ए वाइड सेट ऑफ रिटेलर्स टू सेल दीज. अभी तो क्या है, कोई भी दे सकता है, एनी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बिहाइंड द काउंटर्स, और वेब इंटरफेसेस से भी आप ले सकते हो. तो ओटीसी लिस्ट जो है वो उसके अंदर रेगुलर पेन किलर्स, एंटी एलर्जीज, लैक्सेटिव, कफ सिरप्स, एंटी फंगल प्रोडक्ट्स और कुछ फॉर्मुलेशन अस्थमा पेशेंट्स के, ये रूटीनली यूज होते हैं और उसमें डॉक्टर की एक्सपीरियंस एडवाइस नहीं चाहिए होती. लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें देखना पड़ेगा. ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, वो मिसयूज को रोकना चाहते हैं. मिसयूज से आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है. ये सारी चीजों के लिए हमें देखना होगा और हमें फ्यूचर में उसको देखना चाहिए. इंडियन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूशनरी लॉज ग्लोबली. तो हम इस विषय में यही कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्स रीजन्स वो इंडिजिनस कम्युनिटीज से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर लोग ट्रेडिशनली रहे हैं. उन्होंने वहाँ पे ही एक गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट किया है, नेचर के सानिध्य में रहे हैं, दे हैव प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी एंड नर्चर्ड इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाई इंडिया आल्सो, इंडियाज फॉरेस्ट राइट एक्ट गिव्स पावर टू द ग्राम सभा. इंडियाज फॉरेस्ट राइट एक्ट गिव पावर टू द ट्राइबल्स. कोई भी चीज होने से पहले उनकी हम सहमति लेते हैं, देन उनको लेके चलते हैं. सो तो क्रिमिनलाइजिंग इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज को इंक्रोचर हम नहीं मानते. सो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन तभी रह सकता है जब लोकल पीपल उससे जुड़े रहें. सो दैट इज व्हाई कंजर्वेशन विद लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉज आर क्रूशियल टू फैसिलिटेट कंजर्वेशन. इसी कॉन्टेक्स्ट में द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट from which many conservation and biodiversity related multilateral treaties and legal frameworks have emerged.
सो पहली बार कब आया? रियो समिट 1992. 196 countries are part to the CBD today with their national legal frameworks being guided by the CBD framework. बिल्कुल सही बात है. CBD का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी इंक्लूडिंग लैंडस्केप, स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्स. ये आप वैसे ही ले लेंगे बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है. इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, सिग्नेटरी भी है CBD का, रिच हिस्ट्री भी है हमारी कम्युनिटी लेड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की. हमने 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को भी हमने किया और हमने इंप्लीमेंट भी किया CBD को. एक्ट क्या बोलता है? 3 tier इंस्टीट्यूशन सिस्टम, NBA दैट इज नेशनल biodiversity authority at the center, state biodiversity authority or boards, and the biodiversity management committees at the local level. So attempts have been made to include communities in conservation through parameters such as joint forest management, border forest, and resource laws have historically denied Adivasi and other traditional communities their access to forest and criminalized their rights, leading to large-scale dispossession. India formalized the protected area model under Wildlife Protection Act 1972, Project Tiger in 1973, and in February 2025 country ने modify किया जो आपके 1134 प्रोटेक्टेड एरियाज में 58 टाइगर रिजर्व्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन हमने 6 लाख लोगों को डिस्प्लेस भी किया है. इसीलिए 2006 पार्लियामेंट पास शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डाइवर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ताकि वहीं उनको राइट्स भी दिए जाएं, लिविंग राइट्स भी दिए जाएं, हैबिटेशन भी दिया जाए, नेचुरल रिसोर्स बायोडाइवर्सिटी को भी वहीं पर मौका मिले. सो द इंडिजिनस पीपल एंड द लोकल कम्युनिटीज, IPLCs, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड उनके राइट्स को हमने रिकॉग्नाइज किया. UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ भी हमने उसको जोड़ा. एंड Convention on Biological Diversity, it is urging people to respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous law and local community. बहुत important. 2007 में UN ने पास Declaration on the Rights of Indigenous People to address the discriminations that is IPLCs they are facing throughout the world. इंडिया ने जब 2006 के बाद 7 में जब ग्राम सभा को और उन लोगों को वैल्यू दी, our idea was to relate with the scheduled and tribal areas articles 244 and 244A. 2011 सेंसस में हमने देखा 8.6% पॉपुलेशन है हमारी आदिवासी की. गवर्नमेंट ने उसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बढ़ाते हुए पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पेसा एक्ट 1996 और फेरा को यूज किया. फेरा मोस्ट एडवांस लीगल फ्रेमवर्क है वर्ल्ड में. रिलेशनशिप भी बता रहा है वो आपकी टेन्योर सिक्योरिटी के साथ, राइट्स भी दे रहा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात भी कर रहा है, डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म्स को भी क्रिएट कर रहा है, आदिवासी और उनके राइट्स को भी बिना किसी तरह के लाग लपेट के मौका दे रहा है. कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, KMGBF, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, विद CBD सिग्नेटरीज अडॉप्टेड फॉर देयर COP15 समिट इन 2022 कनाडा. वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि इक्विटेबल रिलेशनशिप आए, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन आए, इक्विटेबल राइट्स भी मिले, लोग हार्मनी में रहें, मतलब आदिवासी और पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को उसका फायदा मिले. तो 30/30 ये भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ब्रिंगिंग 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड मैरीन एरियाज अंडर देयर प्रोटेक्शन बाय 2030. और साथ में FRA अडॉप्ट करता है मोर नुएंस्ड अप्रोच, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी of the 13 kinds of rights recognized in the Act. 2 are especially important. 1, right to access to biodiversity and community. Right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity. PT में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा. And cultural diversity and right to protect, regenerate सारे आएंगे. सिचुएशन क्या है? CBDs COP16 ने एस्टेब्लिश किया एक परमानेंट सब्सिडरी बॉडी फॉर IPLCs और साथ में अडॉप्ट किया एक प्रोग्राम को दैट इज ऑन बेस्ड ऑन आर्टिकल 8. द बॉडी मेड द CBD द ओनली UN कन्वेंशन विद अ डेडिकेटेड प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट द राइट ऑफ IPLCs. इंडिया ने भी 23 टारगेट बनाए नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एंड एक्शन प्लान के अंदर और 2030 तक उसको अचीव करने की बात. इवन दो अपडेटेड NBSAPs emphasize पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स द बॉटम अप गवर्नेंस, जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेड कंजर्वेटिव मेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए, उसके लिए हमें सिनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और ऑफिसर्स का रोल भी है. 30/30 एजेंडा तभी पूरा हो पाएगा. तो KMGBF जो है जिसकी हमने अभी बात की, वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है. इंडिया ने गाइडलाइंस भी दी और साथ में एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि प्रोटेक्टेड एरिया OECM की अगर मैं बात करूं, ईच OECM, तो उसके अंदर क्या हो जाता है भाई, अदर अफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर जिनको हम कहते हैं. तो OECM में अगर मैं बात करूं तो 4 फीचर्स हैं. स्टूडेंट ऑलरेडी भी है प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है भाई, ऑलरेडी गवर्नमेंट मैनेज नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, चलिए. प्राइवेट एंटिटीज
और आईपीएलसीज, ठीक है भाई, मेक सस्टेनेबल एफर्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एज वेल एज कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक और अदर वैल्यूज। तो विदाउट प्रॉपर चेक्स एंड लीगल रेगुलेशन राइट्स, ओईसीएम्स कैन बिकम टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि वही बात है, ये चीजें तो चाहिए, लेकिन क्या वाकई आप उसको ठीक से पुटअप कर पाएंगे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का रोल है। और जो ड्राफ्ट बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2024 हैं, जो मेंस के लिए क्वेश्चन पूरा बन जाता है इस आर्टिकल में, वेरी वेरी फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट, वो आपको देखना होगा कि हम बोल तो इतनी सारी बातें रहे हैं और हम क्रिटिकली एग्जामिन भी कर रहे हैं, तो क्या हम वाकई इसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं, तो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एबियंस में रख दिया, बिल्कुल सही बात है। और एबियंस का मतलब क्या है? कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, ना वीना कन्वेंशन के अंदर आओगे, ना कहीं और आओगे, ना ना कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आएगा। इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू वीसीएलटी। इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। पाकिस्तान ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया। तो इसीलिए इंडिया ने आईबीएंस अगर किया भी है तो जो है उसकी इंडिया के लिए कोई लेजिटिमेसी नहीं है, पाकिस्तान उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। सो आईडब्ल्यूटी की जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो यूनिलेटरल सस्पेंशन और सब्सटेंशिव और प्रोसीजरल ऑब्लिगेशंस की जो मतलब उसको प्रिक्लूड करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर हम वीसीएलटी को ले लेते तो हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही ऐसा कर सकते। तो इंडिया ने नोटिस इशू किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के यूनिलेटरल डिसीजन को पाकिस्तान ने इंडिया के बल्कि इंडिया आर्ग्यूड दैट पाकिस्तान यूनिलेटरल डिसीजन टू अप्रोच द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन violated the treaty's dispute resolution mechanism outlined in different articles। तो इसीलिए अब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को एक काउंटर टेररिज्म डेटरेंट के तौर पे यूज किया है, और इसलिए उसने एबियंस वर्ड यूज किया है, ना कि सस्पेंशन या टर्मिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो क्या हमने ब्रीच किया? क्या हमने कुछ गलती की? ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि परसिस्टेंट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम उसको हमेशा झेल नहीं सकते। हम जो चाहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। ये हमारे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के सम्मान और राष्ट्र की एग्जिस्टेंशियल जो एक सांस की बात होती है वो जुड़ी हुई है। तो हमने एबियंस वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कॉशियस स्टेप लिया, पब्लिक सेंटिमेंट को भी उससे एड्रेस हो जाएगा। और हमने डायरेक्टली ये भी बताया कि कैलकुलेटिव मूव है, हमें कोई लीगल ऑब्जेक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे भी हम काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी भी है, मिलिट्री भी जो है सपोर्ट होती जा रही है, और जो है पाकिस्तान इज फाइनेंशियली ऑल्सो इट इज फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड इंस्टेबिलिटी। इसी कॉन्टेक्स्ट में एबियंस वर्ड बहुत अच्छा है, उससे प्रेशर आएगा। पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है, इंडिया की डिमांड से कंप्लाई नहीं कर पाएगा, इंडिया को अपने गोल्स पूरा करने के लिए टाइम मिलेगा, जैसे किशन गंगा है, बागलीहार है, रेटल हाइडल प्रोजेक्ट है। और साथ में इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक मूव की तरह किया है, जरूरत पड़ने पर इंडिया वापस भी बात कर लेगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए रेमिफिकेशंस क्या होंगे? पहली बात तो डोमेस्टिक जो हमारी सेंटिमेंट है वो असोज हुए, ग्लोबल स्टेज के ऊपर unilaterally violating Indus Water Treaty could lead to India facing permanent court of arbitration or the International Court of Justice, damaging its credibility as a responsible international actor। वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमने बैलेंस किया नेशनल सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल प्रूडेंस को। हम फास्ट ट्रैक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत फास्ट भी नहीं। एसेंशियल पब्लिक और एनवायरमेंटल स्क्रूटनी हमें देनी होगी। डायर कॉन्सिक्वेंसेज जो हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी रिच और सिस्मेटिकली सेंसिटिव इंडस बेसिन में, वो हमें देखना होगा। वेपनाइजिंग वाटर रिसोर्सेज एज ए स्ट्रेटेजिक टूल, वो हमारे लिए तो औरों के लिए भी हो सकता है। पब्लिक सेंटिमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टैंड चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइड्रोजन वर्सेस बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक एग्जाम्पल है। हमें तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात करनी है, हमें लिथियम बैटरीज की भी बात करनी है। और आप देखिए वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्लीनर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस को देखती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है कॉस्ट पर किलोमीटर देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कार की सेल्स देखनी पड़ेंगी, और PM2.5 एक्सपोजर से कितनी डेथ हुई वो हमें देखनी पड़ेंगी। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर आपको बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्सेज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये दोनों के कंपैरिजन की बात की गई है। तो हमें फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो थोड़े कम हैं, क्योंकि वो ग्लोबली 93,000 यूनिट्स ग्लोबली से इक्वल टू जस्ट वन हाइड्रोजन व्हीकल फॉर एवरी 330 बैटरी पावर्ड व्हीकल्स। तो 330 पावर्ड बैटरी व्हीकल्स आर, हमें उसका देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स और क्या क्या हमारे लिए प्रेरोगेटिव्स हैं। क्या हमारे पास उसका मैन्युफैक्चरिंग, क्या हमारे पास उसका प्रोक्योरमेंट, क्या उसका हमारे पास डिस्पोजल, क्या उसका हमारे पास सस्टेन सप्लाई, ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा। और ये चारों ग्राफ को इंडिया के ग्राफ से जोड़कर आप एक चीज सोच सकते हैं, खासकर चार्ट नंबर 3, दैट इज शोकेसिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार,
बैटरी इलेक्ट्रिक बस, बैटरी इलेक्ट्रिक कार, तो ये एंगल से आप देख सकते हैं। फाइनली महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट हुआ, इंटरनेशनल लेबर डे भी उसी दिन आता है, तो उसकी एक पूरी स्टोरी है कि कैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का रोल था, कैसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, अन्ना भाऊ साठे साहब, सीनियर फ्रीडम फाइटर विट्ठल भाई, उसके बाद कॉमरेड अहिल्या रणगेंकर, तारा रेड्डी जी, मीना देशपांडे का क्लासिक नावल हुतात्मा जो है आपका, दैट इज मार्टर्स। तो पैशन था मराठी भाषा के लिए, संयुक्त महाराष्ट्र के लिए, और छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, शिवाजी जी का विजन था, महाराष्ट्र धर्म जुड़ा हुआ है, महाकविति भाकर साहब 15th सेंचुरी, वहां से आइडिया उसको जोड़ा। सो द संयुक्त मास्टर की जो बात थी, जो अन्ना भाऊ साठे साहब का कंट्रीब्यूशन है, और जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अम्बेडकर साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने सबसे पहले ये बोला ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब जेवीपी कमेटी, धार कमीशन, फजल कमीशन, सबने जब मना कर दिया, मराठी पीपल के सेंटिमेंट्स को फिर और उठना और ऊपर उठने लगे, और डेमोक्रेटिकली जो है वो संयुक्त महाराष्ट्र समिति केशर और झेदे साहब के पास जब पहुंचा, और उसमें एस एन जोशी साहब जैसे स्टालवर्ड्स भी थे, तो उन्होंने पहले नागपुर पैक्ट किया। उस बात को जो है नागपुर पैक्ट को जो पावर मिली थी, वो कहाँ से मिली? वो अकोला पैक्ट से मिली। और एम एस गोलवालकर एट द एंटी प्रोविंस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि इकोड द सेंटिमेंट्स ऑफ द बॉम्बे सिटीजंस कमिटी हेल्ड बाय गुजराती स्पीकिंग एलिट्स हु वर अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र। लेटर इंदिरा गांधी, उन्होंने भी थोड़ा नच किया, और संयुक्त महाराष्ट्र जो है वो बना। और यूनियन मिनिस्टर सी डी देशमुख साहब ने रेजिग्नेशन दिया, लोगों की जान भी गई, लेकिन फाइनली आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का एक तरीके से वजूद बना। और मूवमेंट के अंदर जो टीयर्स थे, मूवमेंट के अंदर जो जो राइज था, राइज मराठा, स्टॉर्म हैज राइजन, ये सब बातें जो थे, नीरा आडकरकर, मीना मेनन, और मराठी स्पीकिंग मासेस मासेस का साथ में जुड़ना, लोक शहीद अन्ना भाऊ साठे, जिनका रोल मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट, फोक आर्टिस्ट, अन्ना भाऊ वाज ए फोक आर्टिस्ट, राइटर एंड सोशल वर्कर, और उन्होंने रेड फ्लैग कल्चरल स्क्वाड करके जो उन्होंने अपना वर्क लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, रूरल एरियाज को भी साथ में लिया। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी है वो यहाँ से दिखाई देती है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेटिक मॉडल, एक मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव मॉडल, जिसके अंदर माझी मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र है तो मुंबई उसकी जान है, ऐसा करके आप कह सकते हैं कि वो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लाइक ईगल हैज विंग्स एंड द टाइगर हैज क्लॉज, जस्ट लाइक मुंबई फॉर महाराष्ट्र। तो माझी मणा गवरा राहिले, तो ये एक अपने आप में सोच है, इसमें अम्बेडकर साहब का भी रोल था, और बॉम्बे कॉर्पोरेशन में उनकी पार्टी ने इन बातों को किया, और आचार्य अत्रे साहब भी ने भी जोड़ा। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन तो तिलक साहब ने भी बोला था। सो 1956 में अम्बेडकर सेंट ए टेलीग्राम टू जवाहरलाल नेहरू एक्सप्रेसिंग हिज इंडिग्नेशन विद द प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। ही वाज अनवेयरिंग इन हिज बिलीफ दैट मुंबई वाज फॉर महाराष्ट्र ओनली, क्योंकि वो गुजरात के साथ जोड़ने की बात भी थी। तो इसीलिए स्टेट माइनॉरिटीज नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस एंड थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, उन्होंने इसमें चर्चा भी की। अम्बेडकर आर्ग्यूड द स्टेट फॉर्मेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज कल्टिवेट्स सोशल यूनिटी, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। तो जब कभी ऐसी बात आती है, आप भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। बी के गायकवाड़, बी सी कामले, बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। The end of this linguistic cultural movement was reached when on May 1, 1960, state of Maharashtra with Mumbai as capital was formed. अब आप कह सकते हैं कि पोएट जो है वृंदा कारंदीकर, उन्होंने जो बोला कि फॉर द लिबरेशन ऑफ पीपल देयर इज स्टिल वन मोर बैटल टू गो एंड हुज सोल इज वन, दीज पीपल आर इमॉर्टल। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी मेंस के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसको समझना। और ये सारे थीम्स से आप अपने कीवर्ड्स और की पॉइंट्स बनाइए। अगर आपने नोट साथ में नहीं बनाए तो आपको सक्सेस मिलने में तकलीफ हो सकती है। संयुक्त महाराष्ट्र की तरह, संयुक्त मूवमेंट की तरह हमें भी आगे बढ़ना होगा, हमें भी सोचना होगा। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो with more ideas and more commitment. Thank you.